देखिए, जब बजट की बात करते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन, एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बजट से यही होती है। सब आदमी यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है और सबसे ज़्यादा आपको पता है बजट में क्या देखा जाता है, किस चीज़ के लिए बजट सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं और इसी को बेसिस पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि बजट बेकार है या फिर बजट बहुत अच्छा है। Hello and welcome to the Street Expert podcast on pre-budget analysis. You are watching what could be the most important budget discussion of this year. I'm Sachin Kheria and joining me today is Dr. Ravi, Chief Research Officer at Master Trust. So here is what we are covering today. India's economic growth is back on track. Nifty is at record high, but household savings are stuck. Why isn't growth translating into actual wealth for middle class families? That's the question this budget needs to answer. We will break down the income tax changes everyone's waiting for, especially for the 12 to 20 lakhs earner. Then capital gain tax. Are your stock investments about to get hit again? We will also look at what's coming for senior citizens, and finally the 5 sectors that are positioned to benefit most when this budget shifts spending from infrastructure to consumption. Dr. Ravi, as we head into budget 2026, we are seeing a strange paradox. Markets near record high, GDP growth improving, but household budgets are squeezed. What's going on? Sir, you were rightly said that because Indian economy is a consumption-based economy, so government need to be increase the capex, and market is also expecting some upside momentum. But these days there is some profit booking. In retailers and NRI or FIIs, they are not showing so much interest about the stock market. So these days there is a profit booking, but I can say that if you go to decode the pre-budget session, then definitely there is a lot of opportunity in many sectors, and you may see some upward momentum in all the sectors and all the stocks. So yes, the budget is more volatile compared to your expectation. But the real challenge here is again the consumption, where despite a lot of push last year from government, बजट में 12 लाख के नीचे तक के सारे टैक्स माफ़ कर दिए, कैपेक्स कोविड के बाद तक ऑलमोस्ट मेंटेन किया, which was supposed, we expecting that it will fall down. There were bit incremental tax, the bit higher tax on long term capital gain securities में उन्होंने बढ़ाया, but still the consumption thing is not coming back, even though the inflation is calmed down, RBI की टेरिटरी के अंदर है. Consumption is what everybody is waiting. देखिए, मैं दोनों को रिलेट करता हूँ. सबसे बड़ी बात है कि इन अब जब कंपेयर करें आप बजट को, तो बजट पिछले 2-3 सालों में आपको ना कंजप्शन बेस्ड ही दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से कंजप्शन कब आपका बूस्ट हो सकता है, जब आपका कैपेक्स इंक्रीज किया जाए. गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली फोकस ऑन द कैपेक्स, राइट. ये थ्योरी आई कहाँ से है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी शुरू हुई थी यूएस से, क्योंकि यूएस जो है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, और उसकी ग्रोथ के हिसाब से देखें तो दैट 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उनकी इकोनॉमी है. भारत की बात करें तो वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय है, लगभग हम 4 ट्रिलियन के पास है. बट पॉइंट इज़ दैट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि जब आप कंजप्शन बेस्ड होते हैं तो आपको कैपेक्स बड़ा रखना पड़ता है. बड़ा रखने का मतलब यही है कि आप आगे आपका कंजप्शन बढ़ेगा. एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, एक आम लोगों की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 साल का अगर बजट आप देखिए तो आपको कैपेक्स के नए हाईज बनते हुए नजर आए नंबर टर्म्स, राइट. वॉट एवर इज़ ईवी सेगमेंट की बात कर लें, या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें, या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, डिफेंस और रेलवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है. इस पर हम लोग लास्ट चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप इनने भी देखा होगा कि इनमें लोगों का रुझान लास्ट 2 ईयर्स से, और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू कंपेयर, देन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर दे आर गेटिंग 80% to 100% return on these segment, whatever is you can say that railway segments or defense sector. That means कि capex improve करने का सीधा सीधा फायदा consumption based economy पे
इनपुट होता हुआ नज़र आया। सरकार का पहला टारगेट क्या है? सरकार ने पहले ही जब जब बेस थ्योरी बन रही थी एक तरीके से कह लीजिए जब बजट की, तो गवर्नमेंट सिंपली इंडिकेट किया दैट 2047 जो उनका टारगेट है कि हम 2047 तक एक विकसित इकोनॉमी बने और एक विकासशील देश की तरफ बढ़ते हुए हम विकसित देश की तरफ जाएं। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने वहाँ पर अपने सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, उसका सीधा सीधा फ़ायदा आज इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। आप एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ जाएं, आप ऑटो सेक्टर की ग्रोथ की तरफ जाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलते थे। आपने छोटी छोटी रील्स यूट्यूब और इंस्टा पे देखी होगी जिसमें कई जगह पे कंपैरिजन ये दिखाया जाता था कि दिस इज़ नोएडा, दिस इज़ गुड़गांव, दिस इज़ हैदराबाद और अदर सिटीज़। वो आज इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुका है। गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन में रिकॉर्ड बनाए हैं, मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड वाइड भी अगर कंपैरिजन करें तो हम सबसे ज़्यादा स्पीड से रोड बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कैपेक्स तो इंक्रीज़ किया है और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में दिख रहा है। बट आई होप ये ग्रोथ जो है वो इस बार के बजट एक्सपेक्टेशन जो हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स पे, स्पेंडिंग पे, एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो पार्ट है इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ बिट कि वो प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़े। प्राइवेट कैपेक्स इनफैक्ट पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ा भी है, बट स्टिल निफ्टी एंड सेंसेक्स में वो मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, बट स्टॉक्स में वो नज़र नहीं आ रहा। अगस्त के आसपास 2024 से जो गिरावट बाज़ार में रही है, इंडेक्स might have again touched the new high, आसपास आ गया, but stocks are nowhere near. अभी भी stocks are stuck with their clients. वो इक्विटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट में कब रिफ्लेक्ट करेगा? the whatever government is doing. See what I just look at यूरोपियन मार्केट, जहाँ सडनली पिछले 1.5 साल में काफ़ी मूवमेंट आई है। जापान मार्केट में काफ़ी मूवमेंट आई है। यूएस ऑल टाइम हाई चल रहा है। I don't know where the gap is. Yeah, have we run way ahead of our time? For example, 2020 के बाद सारी ग्लोबल मार्केट्स में रैली आई, खास करके यूएस, इंडिया में। But India somewhere for last 2 years have not been that performing as compared to Europeans, US and maybe few other pockets. There is some point I may agree with you, but if you talk about infrastructure development, if you talk about a growth structure, if you talk about a political stability, then I am not agree with you. Because why I am saying this, there is a specific reason. What exactly is the current situation these days? US is fighting the inflation, degrowth. Eurozone is fighting with the inflation and geopolitical tension also. India is the biggest economy developed with the growth rate of near to the 7%, राइट? सो अगर देश का कंपैरिजन दूसरे देशों से करें तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद भारत की जो इकोनॉमी जितनी पॉजिटिव है, जितनी ग्रोथ दिख रही है, उतनी ग्रोथ किसी और कंट्री में दिखाई देगी। एक एग्जांपल के लिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी। लास्ट 1 साल से अगर देखें तो FIIs कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं, लेकिन FIIs अपने जो इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं, हकीकत ये है कि वो इतने बड़े प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं कि उनको निकालने में आज ज़्यादा समझदारी दिख रही है। और होता भी क्या है कि जब एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो जनरली अगर आप बहुत बेसिक रैली कर चुके हो तो टर्न अराउंड स्टोरी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, आज जिसने अगर सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने यूरोजोन में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मैंने US के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और मैंने इंडिया के मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। आज मार्केट का अगर कंपैरिजन करें ग्रोथ ऑन ग्रोथ बेसिस पे तो इंडिया का निफ्टी का सिर्फ एक एग्जांपल ले लीजिए, 17 से 18% की ग्रोथ कंटिन्यूअस आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। US मार्केट आज हाई पर जरूर है लेकिन आपको 17-18% की ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो स्टॉक के लॉसेज हैं या कंपनियों जो ग्रोथ स्ट्रक्चर में जब आप कोई डाइल्यूट करते हैं
तो आप कोशिश करते हैं कि फंड एक जगह से जहां पर लॉस आ रहा हो उस फंड को मेंटेन करने के लिए जहां प्रॉफिट आ रहा हो वहां के फंड को डाइवर्ट करना। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आज आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप शायद बांग्लादेश भी नहीं जाना चाहेंगे। आप किसी और कंट्री में अगर यूरोजोन पे जाते हैं तो वहाँ पर शायद आपको उतना कुछ जो है वो लुब्रिकेटिव नहीं मिल रहा है। लेकिन इंडिया दो चीज़ों पर सबसे आगे है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इंडिया में आज अगर सिर्फ मैं एक डेटा आपसे पूछता हूँ और उसको अगर आप डिकोड करने की कोशिश करें तो आपको जो आपने बेस आप याद रखिए जो हमने बात करी थी कंजप्शन की। फर्स्ट, डीमैट अकाउंट हमारे पास आज कितने हैं? 20 करोड़। हमारी पॉपुलेशन एक बार को एक नंबर ना मान के चलिए कि 140 करोड़, 140 करोड़ आवर पॉपुलेशन, सिर्फ 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है। ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर रहे हैं, उसका उस डेटा को यहाँ पर डिकोड करें तो शायद आपको 5 करोड़ लोग डे टू डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं अदर ब्रोकिंग हाउसेस के साथ में। अब इसी डेटा को थोड़ा और इंक्रीज करें, मोबाइल यूजर कितने हैं? 128 करोड़। टैक्स कितने लोग पे करते हैं? ओनली 9 करोड़। अब आप इस ग्रोथ को आप पिछले 2 सालों की ग्रोथ से कंपैरिजन करें तो आप ये पाएंगे जितनी हमने ये नंबर्स अभी मैंने जो आपको बताए हैं ये लास्ट 2 से 3 साल में ही यहां पर आए हैं। उससे पहले तो ये नंबर्स की तरफ कोई देखता या ध्यान भी नहीं रहा होगा या इतनी तेज ग्रोथ देखने को नहीं मिली होगी। यानी रियल स्टोरी इंडिया के जो स्टार्ट हो रही है वो अब स्टार्ट हो रही है। तो यूएस या फिर अदर कंट्रीज को तो अब मौका मिलेगा जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल सकते हैं। कंजप्शन में की बात करें, इस समय जिस हिसाब से हमारे बजट का एलोकेशन बढ़ा है, लास्ट टू लास्ट ईयर में अगर बजट की तरफ जाएं तो आज शायद 45 लाख करोड़ के आसपास का था। इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो है लगभग 59, मतलब 60 लाख करोड़ का बजट का एलोकेशन है। आप इंक्रीजमेंट देखिए और उस हिसाब से अगर रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करें, इंडिया इज द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऐसे ही नहीं कहा गया है। देयर इज अ सम स्पेसिफिक रीजन जो कि नंबर्स के टर्म पर आपको ग्रोथ देते हुए नजर आएंगे। So now, since you mentioned 60 lakhs crore around budget expectation of this year, how do you see government funding those figures? Because they have cut down to their income through taxation, सब 12 lakhs के नीचे वाला जीरो कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बढ़ाया लेकिन मार्केट ने साथ नहीं दिया, वहाँ से भी लीकेज है। सो 60 लाख तो कर दिया। हाउ डू यू सी दैट दे वुड बी एबल टू फंड दैट काइंड ऑफ फिगर्स? इट वुड बी अगेन थ्रू डेट और दे वुड हैव सम अदर प्लान्स टू टैक्सेशन। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, जब बजट की बात करते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन, एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बजट से यही होती है। सब आदमी, यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है और सबसे ज़्यादा आपको पता है बजट में क्या देखा जाता है? किस चीज़ के लिए बजट सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं? सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए, टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के बेसिस पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि बजट बेकार है या फिर बजट बहुत अच्छा है। वो तो हमेशा आखिरी में ही दे टेंड टू पुट इट ऑन द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बजट स्पीच। सो लेकिन मैं आपको भी एक नंबर जो मैंने बताया मैं उसको रिपीट करता हूं अगेन। इंडिया के साथ चैलेंज क्या है? इंडिया इज अ कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। दे वांट टू इंक्रीज देयर कैपेक्स, लेकिन सरकार को रेवेन्यू कौन लोग दे रहे हैं? सिर्फ 9 करोड़ लोग रेवेन्यू दे रहे हैं। उसमें भी सरकार ने बहुत से, जो आपने जैसे टैक्स बेनिफिट की बात करी, वो टैक्स बेनिफिट, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज गिविंग। द इनडायरेक्ट टैक्स किटी इज नॉट स्मॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 9 करोड़ आपके फिगर्स जो हैं, आई नीड टू वेरीफाई ऑब्वियसली दैट दीज आर द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, राइट? बट द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी हाई। एंड यहाँ पर हम the form of taxes being levied on, let's say, petrol or many other goods which government do, if we account, that figure would be very very high. Yeah, you rightly said that, Sachin ji. Exactly, everybody is giving the tax, right? But if you go to the past, then you understand government is always thinking about the taxpayers and everybody, right? There is a direct or indirect. You are rightly said that indirect tax, right? अब if you talk about a
वन पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पे देर इज़ अ वन एग्जाम्पल. रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ cut the GST rates in so many sectors, right? Like auto sector is one of the example, जहाँ पर GST इतना घटा दिया कि गाड़ियों के प्राइसेस क्रैश करने शुरू हो गए. सरकार जितना ले रही है उसको किसी न किसी फॉर्म में आपको वापस कर रही है. क्यों, किस तरीके से वापस कर रही है उसको आप अंडरस्टैंड करें. जहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री एक रिसेशन पीरियड में जाने वाली थी, वहाँ पर सरकार ने एक साफ साफ डिसीजन लिया कि GST को कट कर दो. कट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से कंजप्शन बेस्ड स्टोरी वापस से स्टार्ट करना चाहती है, या फिर जो रिसेशन पीरियड में जाने वाले थे उन रिसेशन पीरियड्स को वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. Do you think this GST cut by government as a tool to steer the economy, or something which government have improved their own mistakes from base slabs of GST? They have increased GST rates to such an high that they have to again bring it down to again improve the consumption. See, what I'm trying to say is, आप इसको कैसे देखते हैं कि वो गवर्नमेंट ने GST कट के बाद अपने ही रॉन्ग डूइंग्स को ठीक किया, या फिर आई डोंट नो, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सी, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी के इफ़ एंड बट्स होते हैं, राइट? सबसे अच्छा ये माना जाता है कि अगर हम इफ़ एंड बट्स पे जाएं और अपनी गलती को जितनी जल्दी सुधार सकें, उससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं होता है. लेकिन अगर सरकार यहाँ पर कोई इस चीज़ को ऐसा लगता है कि उनको इसकी वजह से डी ग्रोथ होने वाली थी, या फिर ऐसा उनको महसूस हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने जो डिसीजन है उसको अगर कट डाउन किया और वापस से स्ट्रीट पर लाने की कोशिश की गई है, और जैसा आपका प्रोग्राम का नाम ही है स्ट्रीट, तो फिर स्ट्रीट तो कंटिन्यू अच्छी होनी चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल को अगर देखें तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इस तरीके के डिसीजंस जो है इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस, जैसा आपने बताया ना, ये एक बूस्ट भी करता है कि अगर कुछ रिसेशन में जा रहा है या कुछ दिक्कत आ सकती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर खड़ी हुई है. और रिसेंट डेज में तो नए नए सेक्टर्स जो इस समय निकल कर आ रहे हैं, और इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक कमी जो नज़र आती है वो आती है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स की. इन्वेस्टर तक वो बात पहुंचने की, इन्वेस्टर तक कोई स्टोरी ही नहीं पहुंच पाती. एक्चुअली में जो टैक्स स्लैब की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा भी जो टैक्स पे, जो अपर साइड से टैक्स पे कर रहे हैं उनको ही मिलता है, और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको मिलता है. मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लिए भी यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए. और जब आप टैक्स की बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कुछ बड़े की ज़रूरत नहीं है, छोटा है छोटे की ज़रूरत है. ये लाइन हमने शायद मेरे ख्याल से सुनी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को छोटे छोटे कदम ही उठाने चाहिए. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया देने की कोशिश करूँ. आप प्लीज़ बताएं. देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बजट में होती है, हम कितना क्या देखते हैं उसमें कि 1.5 लाख की छूट है, वो थोड़ी सी और बढ़ जाए. और सबसे बड़ी बात है, इस समय एक बड़ा कन्फ्यूज़न जो एक आम आदमी के हिसाब से है, वो टैक्स पे जाएँ तो ये आता है कि न्यू टैक्स रिजीम को लें, वो फ़ायदा दे देगी, या फिर पुरानी टैक्स रिजीम फ़ायदा दे देगी. इतना कन्फ्यूज़न सरकार को नहीं क्रिएट करना चाहिए. मेरा पर्सनल अपना व्यू है. मुझे ऐसा लगता है सरकार को एक लाइन पर रखना चाहिए. न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाएं, इससे अच्छा है सिंपल एक रिजीम कर दीजिए, बेनिफिट थोड़े से बढ़ा दीजिए. नंबर एक, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेनिफिट्स का आप जितने ज़्यादा लोगों को प्रवोक कर पाएँ कि आप टैक्स देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी सरकार के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी. अभी सिर्फ 9 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, आपने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो सभी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली छोड़िए, इनडायरेक्ट के होते हुए भी डायरेक्ट 9 करोड़ लोग दे रहे हैं टैक्स. इसको इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट, या फिर ऐसा कुछ एजुकेशन प्रोग्राम हो जो लोगों को भी फायदा दे. मैं एग्जांपल देता हूँ. आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट एक मिडिल क्लास कैटेगरी का भी करता है, अपर क्लास भी करता है. टैक्स रिजीम में इंक्लूड कर दें कि अगर आपने इतनी फ्लाइट टिकट करी तो आपको इतनी टैक्स, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. बहुत सिंपल सा है, थोड़े से लालच में बड़ा काम हो सकता है सरकार का. दूसरा, जो मिडिल क्लास फैमिली अपने टैक्स को पे कर रहे हैं, अपने बिल्स को पे कर रहे हैं, बिजली का बिल है, सब लोग देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, उस पर आप दे दीजिए कि जिसने साल में इतना टैक्स दिया है, मिनिमम कैटेगरी, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आए. क्योंकि आज तो सरकार के पास सबका डेटा है, चाहे आप आधार कार्ड देख लीजिए, चाहे इनकम टैक्स देख लीजिए, सारे डेटा उनके पास हैं. वो जो जिसके नाम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसमें आप ये बेनिफिट दे सकते हैं कि जो बिजली का बिल जमा करेगा हम उसको
ये इंसेंटिव दे सकते हैं। I really hope that the government listens to your suggestions. Coming back to taxation point, where do you think the government would land up in terms of whether they would increase the threshold of 12 lakhs for regime 1 taxation, looking at the need and hour to increase the consumption? Even though whatsoever we say that the consumption might increase, बढ़ गया है, but we are really seeing a great pain in consumption thing which used to be our backbone. So I'm sure that will revive sooner or later. So one, do you think that government will be induced to relax further relaxation on the taxation slabs, whether regime 1 or 2, once they have calculated all the things, what to do, what not to do? Yeah. See, in my point of view, if I'll talk about आम आदमी की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन को देखते हुए सरकार को ज़रूर देना चाहिए। इन्फ्लेशन की जो भी फिगर हों, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैसे भी 50,000 का एक टैक्स बेनिफिट आपको देना चाहिए हर साल। ये तो एक मिनिमम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना इम्पैक्ट करता है। मे बी वो रेशियो चेंज हो सकता है, 15% हो सकता है, 10% हो सकता है, 8% हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ बेनिफिट्स तो बिल्कुल यहाँ पर रिवाइज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन बेस्ड। नंबर 1, जो आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, टैक्स जितने पे टैक्स छूट मिलती है उसको ड्रास्टिकली कम से कम 30% इंक्रीज़ करना चाहिए। 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको छूट मिलती है, उसको बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करना चाहिए हर साल, ईयर ऑन ईयर। मैं इस बजट की बात कर रहा हूँ। मैंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड कहा, मैंने कहा इन्फ्लेशन से उसको कनेक्ट कर देना चाहिए कि इतना बेनिफिट तो देना ही देना है। जितना इन्फ्लेशन है उतना टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स कम हो रही हैं आपकी। दूसरा, अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको छूट ही कम दे रही है तो आपको वो उतना लुब्रिकेटिव नहीं लगता है। उस स्लैब को अगर बढ़ा दिया जाए तो लोगों का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का जो है वो रुझान और बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एनपीएस है, एनपीएस पे भी एक मिनिमम लिमिट तक है, उसको भी कम से कम एटलीस्ट 50,000 से इंक्रीज़ करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत थ्योरेटिकल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बट आज के इन्फ्लेशन को, आज की कंजप्शन स्टोरी, आज के कैपेक्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पॉइंट पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं 50,000 सोच रहा हूँ, अगर 10,000, 15,000 या 20,000 भी होता है तो शायद एक आम आदमी की पॉकेट में कुछ ना कुछ पहुँचता है और उसको एक बूस्ट मिलता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा, जो टैक्स स्लैब की जैसे आपने बात करी, जैसे मैंने कहा न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, उसके जो टैक्स स्लैब्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 24 लाख से ऊपर है तो आपका 30% के आसपास के टैक्स बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैपेक्स हायर साइड, यानी मिडिल क्लास क्या हो गया है, मिडिल क्लास ऐसी बीच लाइन पे आ गया है कि वो बेचारा उस लाइन पे पहुंचने के बाद भी उसको वो अचीवमेंट नहीं मिलता है, और उस टैक्स स्लैब के पास आने के बाद भी उसको लगता है कि इससे अच्छा मैं इस टैक्स स्लैब में नहीं होता, नीचे रहता तो बच रहा था। थ्योरेटिकली उसको इंक्रीमेंट मिलता तो जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो उस टैक्स स्लैब में चला जाता है, वो निकल जाता है, उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके स्लैब को थोड़ा सा सरकार को और 5-5 लाख रुपए इंक्रीज़ करना चाहिए। यानी कि जो आप 5% का टैक्स ले रहे हैं 10 लाख 5 लाख 4 लाख के ऊपर, उसको बढ़ाकर 10 लाख कर देना चाहिए। जो 10 लाख वाला है उसको 15 लाख, जो 15 लाख वाला है उसको 20 लाख। डॉक्टर रवि, आपको लगता नहीं ये 5-5 लाख के स्लैब बढ़ाने के बाद सरकार ने अपना डेट जो 80-85% ऑफ जीडीपी होगा वो 115 हो जाएगा? नहीं, उस हिसाब से कंजप्शन भी उस हिसाब से मेरे हिसाब से कंजप्शन भी डेवलप होगा और उसका फ़ायदा भी होगा। आप एक तरफ जब आप इस तरीके के स्टेप्स उठाते हैं तो उसका नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन उसका फ़ायदा भी दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है। और आज के जो टैक्स स्लैब है उसको मैं देखते हुए मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए। सरकार कितना करेगी या कितना सोचती है वो एक डिफरेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी कही कि जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, मैं सरकार की एक पॉलिसी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत सोचना चाहिए। पहला, एक तो जो एसटीटी लगा रखी है उस एसटीटी को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपनी
सेविंग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है, शेयर ट्रेडिंग के लिए जाता है, या फिर स्टॉक मार्केट पे निवेश करने के लिए जाता है। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर देखें तो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 50 लाख फैमिलीज से ज़्यादा लोग जुड़ी हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंडस्ट्री एसटीटी की वजह से काफ़ी हद तक जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, और उसका फ़ायदा भी आम आदमियों की पॉकेट में नहीं पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि शायद कुछ नहीं करते हैं तो एसटीटी तो एटलीस्ट यहाँ पर कम करना चाहिए, कट करना चाहिए फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से। बट दी थिंग्स आर अदरवाइज, गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंग एसटीटी रेट्स, चाहे वो एफएनओ में बढ़ा रहे हैं, नो, where people are more, they are coming back after those segments in terms of wheresoever they can, pull out some, narrow down the gap of the deficit through maybe STT, through other form of taxation. That's why I'm expecting government will think again and they can give the discounts. What do you think about senior citizens? उनका क्या? देखिए, सीनियर सिटीजन में मैं जो एक प्रैक्टिकल चैलेंज की बात करूँ आपसे, वैसे हालांकि सरकार ने एक वो भी प्रोवाइड कर रखा है कि जो 75 साल से ऊपर है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि उसको घटाकर 75 साल के बजाय उसको 65 साल कर देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से न्यू टैक्स रजीम या ओल्ड टैक्स रजीम या इस सब प्रोसेस में अगर जाना पड़ रहा है तो एक सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा चैलेंज जरूर होता है प्रैक्टिकली। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन का स्लैब है उसको अगर देखें तो उनको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को वहाँ पर उनको और थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे जो खर्चा सीनियर सिटीजन का सिर्फ एक खर्चा है सबसे बड़ा, वो है मेडिकल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि उनके हाथ पर वो शायद No, I think they have lot other expenses, medical, many have other form of expenses, but yes, उनको जद्दोजहद हर चीज़ की करनी है, just like anybody. Even they are, I agree with you that they are retired and they would have other source of income. Medical would be one pain area which frequently उनको टच अपॉन करती है, वो एक्सपेंसेस उनके काफ़ी लार्ज हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ, क्योंकि देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको, अगर मैंने एक केस स्टडी करी, जिस डॉक्टर की फीस पहले 500 रुपये नॉर्मल थी, आज वो बढ़ करके 2000 रुपये हो चुकी है। आप किसी मेट्रो सिटी में आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाइए, 1500 से 2000, 1500 से 2000 रुपीज़ एक कॉमन फीस हो चुकी है। क्या उतने एक्सपेंसेस बढ़ चुके, क्या उतने सरकार ने उतने बेनिफिट उसको दे रही है, या फिर क्या सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आप ग्रोथ स्ट्रक्चर देखिए 3 टाइम से ज़्यादा 4 टाइम से ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर हो चुका है। और दवा की परचेजिंग पे या जैसा सरकार का एक बेनिफिट तो ज़रूर है कि आप कई जगह पे आपको बेनिफिट मिलता है, जिस तरीके से सरकार ने दवाओं को लेकर के जेनरिक दवाओं का वो किया जिसके बहुत बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टैक्स में भी ये स्लैब जरूर होना चाहिए। So which sectors in the budget do you think would be which investors should be cautious and which sectors could be beneficial? I mean, it is just pre-budget analysis. What do you think where people should be very cautious and where they could be very optimistic? So if you talk about a budget expectation, then 5 sector I can take on our research. There is one is a banking counter, second is a defense, third is railway, and fourth is a EV and infrastructure, and fifth is a PSUs like oil, energy and mining also. So can we take one by one? Why would you? What makes you more positive on banking? सबसे पहला टारगेट अगर आप देखें तो बजट का एलोकेशन किसके थ्रू होगा। जो भी फंड आएगा या जो भी फंड किसी भी सेक्टर को एलोकेट किया जाएगा उसका प्रोसेस क्या है, वो बैंकिंग के थ्रू ही जाएगा। बैंकिंग का मतलब है कि आपको बैंक के ग्रोथ आपको वहाँ पर दिखाई देती है साफ साफ, उसकी वजह से जो भी एलोकेशन होगा उसकी वजह से बैंकिंग चेन स्टार्ट हो जाती है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे तो लोन चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए तो वैल्यूज़ चाहिए आपको, मतलब जो भी प्रोजेक्ट का होगा डील होगा उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग चाहिए वो बैंकिंग के थ्रू ही होगी। तो इसका मतलब है कि आपको बैंकिंग काउंटर पे सबसे
जब भी बजट की बात की जाए तो बैंकिंग काउंटर यू हैव टू बी ऑलवेज इन बुलिश मोड। अब उनमें से पर्टिकुलर किस बैंक पे जाना है उसको आप फोकस कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर 2 to 3 स्टॉक्स, 1 or 2 इन PSUs, और यू कैन से दैट टॉप लीडिंग बैंक ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैं जाता हूं तो मुझे शायद SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। अगर प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से जाए तो आपके पास दिग्गज की कई लिस्ट है, लेकिन अगर उनको टॉप शॉट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ICICI बैंक और HDFC बैंक और जो इस समय जो मार्केट सिचुएशन है उस पर अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर वैसे भी आने वाले समय में 16 to 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती, चाहे आप फंडामेंटल फैक्टर पे आप देखें, NPS को देखें, या फिर जिस हिसाब से उनके बैलेंस शीट को अगर एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये काउंटर काफ़ी सेफ साइड पर है। और पीछे भी जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आपको देखने को मिली, उस टाइम पे भी बैंकिंग काउंटर ने आपको काफ़ी सपोर्ट दिया है। What about energy and mining? एनर्जी और माइनिंग की जब बात करें तो देखिए, पहला मेरा एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एनर्जी काउंटर की जब हम बात कर रहे हो तो ग्रीन एनर्जी से थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए। दे आर ट्रेडिंग वेरी हायर जोन। But you mentioned EV as well. हाँ, ईवी में अगर आप जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की कंपनीज आ रही हैं या फिर जो गवर्नमेंट की ईवी की थीम है जिससे रिलेटेड, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ईवी में जब मैं ईवी की बात कर रहा हूँ तो आपको 2 सेगमेंट वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक तो है जो बैटरी सेगमेंट जो उसके कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा, और एक है जिसका इम्पैक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप ऑटो सेक्टर, आपने सोचा होगा मैंने ऑटो सेक्टर क्यों नहीं लिया, बिकॉज दे कैन कवर इनटू द ईवी। अब ईवी सेगमेंट पे अगर आप आते हैं तो आप पाएंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर और अदर कंपनीज में एक फाइट सी चल रही है, और सब एक नए से नए मॉडल को यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको अगर मैच करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी एक सेगमेंट ईवी का जनरेट हो रहा है। वर्ल्ड वाइड हालांकि ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर अभी ईवी बेस्ड स्टॉक इंडिया में थोड़े से कम लिस्टेड हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप की, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में और डेवलप होती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट जो ग्रोथ आपको लास्ट पेट्रोल डीजल से रिलेटेड रही या एनर्जी से रिलेटेड रही, वो ग्रोथ अब आपको ईवी सेगमेंट में आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने ईवी सेगमेंट को यहाँ पर फोकस करने की बात करी। और ईवी सेगमेंट पे अगर आप फोकस करने जाते हैं तो आपके पास 2 तरीके से मिलते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है। उन पे फोकस यहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए। Done. You also mentioned about infrastructure sector, which you are very upbeat about. Can you elaborate? If you talk about infrastructure, then ओवरऑल जो हम पूरे बजट की थीम की बात कर रहे हैं वो स्टार्ट ही इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। चाहे वो इंडिया के मेट्रो सिटीज़ की बात कर लें, जैसा गवर्नमेंट हर बार स्पीच में कहती है कि हम इतने 400 मेट्रो सिटी 400 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, 800 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी जो एक सिटी में होनी चाहिए वो एक गुड क्लास की हो। तो उसके लिए आप जब जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? सबसे पहले आप देख लीजिए कि रोड कंस्ट्रक्शन आज जिस क्वालिटी का हो चुका है उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बूस्ट हो चुके हैं। चाहे वो रियल इस्टेट को देख लीजिए, स्टील सेक्टर को देख लीजिए, या जो कंज्यूमर बेस्ड स्टोरी है वो कहीं ना कहीं से एक ड्रिवन शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हो तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड हो, मटेरियल साइट से रिलेटेड हो, वो थीम यहाँ पर जो है वो सरकार उसका पूरा जो है फोकस उस पर रखेगी। तो मुझे लगता है कि जो बजट एलोकेशन लास्ट टाइम किया था उससे इस बार 5 से 8% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खास तौर से हो सकता है इससे ज़्यादा ही देखने को मिले। तो उसका फ़ायदा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। You spoke about real estate. So where do you see real estate going forward? Real estate, कुछ pockets में they have shown some improvement, some money, but overall where do you see this sector altogether coming back on a full swing? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सचिन जी, इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जैक्ट रियल इस्टेट कंपनीज और एग्जैक्ट रियल इस्टेट स्टॉक लिस्टेड, देन मे बी यू कैन सी सम रिसेशन और सम डिप्रेशन इन देयर प्राइसेस।
आज के समय में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ना बहुत हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन स्टोरी भले बिल्डअप हो रही हो, लेकिन रियल इस्टेट स्टोरी उतनी अच्छी बिल्डअप नहीं हो पाती है। ये जनरली आप पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो आप देखते हुए नजर आए। प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट करती हैं, इतना इन्फ्लेशन कॉस्ट को कह लीजिए या फिर कंजप्शन बेस्ड स्टोरी कह लीजिए, वो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है कि आज के समय में, जैसे मैं एक एग्जांपल इसको ऐसे दूंगा कि आज आप एक कार खरीद के लाइए, घर तक पहुंचते पहुंचते ही ऐसा लगने लगता है कि वो मॉडल पुराना हो गया है। ये जनरली आपने इस चीज़ को, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि पहले होता था कि एक गाड़ी आती थी, उसको 5 साल तक सेम मॉडल आता रहता था, आजकल आता है 6 महीने में दूसरे मॉडल आ जाते हैं। सेम चेंजेस जो है वो सारी इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट कर रही हैं। दैट इज़ अ गुड रिसेशन पॉइंट। अब आप कहेंगे गुड रिसेशन पॉइंट का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को आज सोच रहे हैं कि ये एक कंजप्शन स्टोरी हो सकती है, वो हो सकता है कि आउटडेटेड स्टोरी हो जाए, राइट। सो यहाँ पर ये जो फैक्टर है वो रियल एस्टेट को एक ग्रो तो करने को देता है, लेकिन शायद आपको उतना स्टेबल नहीं दे सकता। बल्कि इनफैक्ट रीसेंट डेज में मैं अपने, जैसे हमारे जो मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट्स हैं या फिर मास्टर ट्रस्ट के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम यही बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम था जब आप कहते थे कि स्टॉक मार्केट में डाल दिया 10 साल तक देखना नहीं है। आज 10 साल बाद उन कंपनियों का पता भी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जागरूक रहिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डे टू डे बेसिस पे ट्रैक रखिए और कोशिश करिए कि आप जितनी जल्दी सरकार, जिस चीज़ को सरकार फोकस कर रही है उस चीज़ को आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है ये अगर आप थोड़ा भी अगर आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट पे लेकर आएंगे तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट रिटेलर हो या इन्वेस्टर हो या कैसे सरकार जिसमें फोकस करना चाहती है, मुझे कैसे पता लगेगा पहले? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हम चूंकि यहाँ पे बजट का डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले 3 बजट में 2-3 चीज़ें आपको बड़ी तेज़ी से नजर आई। पहला, आपने रेलवे का जो एलोकेशन है, पहले रेलवे का एक बजट ही आता था लेकिन फिर भी थोड़ा कम समझ में आता था। अब क्या हुआ, रेलवे का जो एलोकेशन है वो ग्राउंड रियलिटी पर दिखने लगा है। डिफेंस काउंटर, जिसे लोग सोचना या देखना सिर्फ देखते थे लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचते थे, आज उस डिफेंस काउंटर का स्टॉक, ये कह लीजिए कि लगभग हर एक पोर्टफोलियो में आपको 2-1 स्टॉक नजर आएंगे, चाहे वो HAL हो, चाहे BDL हो, चाहे BEML हो या फिर पारस डिफेंस हो। ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टॉक आपकी पॉकेट में, आपकी बास्केट में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार ने हर बजट में डिफेंस का एलोकेशन इंक्रीज किया है। रिसेंट बजट पे तो उन्होंने ड्रास्टिकली इंक्रीज किया था और उसका इंपैक्ट भी दिखा है। और सरकार को अब वो एक ऐसा बेनिफिट दिख रहा है जिससे कि इनकम भी की जा सकती है। आप एग्जांपल देख लीजिए, अब जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है या फिर जो अभी पाकिस्तान के साथ और इंडिया का जो वॉर हुआ था, लास्ट वॉर का मतलब है जो भी कन्फ्रंटेशन हुआ था, ऐसा हुआ, उसको अगर आप फाइंड आउट करें तो उस टाइम पे अचानक से जो इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें एक तेजी देखने को मिली। प्लस जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं वहाँ पर कंपैरिजन ये भी आ गया कि ये चाइनीज़ हैं, ये इंडियंस हैं, तो इस पे ज़्यादा भरोसा। दिस इज़ अ थ्योरी। अगर आप इसको कंजप्शन की तरफ डेवलप करें तो आज इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट डिफेंस काउंटर में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। दूसरी कंट्रीज आपसे परचेज कर रही हैं। तो ये एक अलग एक कंजप्शन स्टोरी डेवलप हुई जो 2 सालों में हुई है, 2-3 सालों में आपको ज़्यादा देखने को मिली। मुझे लगता है इसी तरीके से सरकार के साथ फाइंड आउट कर चलना चाहिए। सरकार रोड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब है आप जो ऑटो सेक्टर है उसकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी। EV सेक्टर जिसकी हमने बात कर ली, जिस तरीके से चिप की बात की जाती है, जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनकी तरफ देखें तो उनकी ग्रोथ आपको ड्रास्टिकली देखने को मिली। आपको हो सकता है टीवी के हाईलाइन पे नहीं देखने को मिला हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप जाके देखेंगे तो उन स्टॉक्स की ग्रोथ स्ट्रक्चरली बहुत बेटर रही है कंपेयर टू द मार्केट। मुझे लगता है वहाँ पर फोकस करना चाहिए। So as we are nearing to the end of our session, we have couple of more questions before we call it a wrap. What do you advise for the first time investors? What should be their expectation with the budget? And second question with this along would be welfare allocation of expectations of the government
what we should expect, which allocations on under social welfare allocations should be from the government side? See, if I'll compile the budget, then there is a simple. Maybe you may see some negativity in the market, maybe see some volatility in the market, but for a new investor, this is the opportunity where you can start your investments, because बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ चलने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और उस इन्वेस्टर को भी पता है। मेरा बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं जब भी किसी को निवेश की राय देता हूँ तो बहुत एक सिंपल फार्मूला जो आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, आपकी जितनी एज है, फॉर एग्जांपल आप 30 साल के हैं, जॉब पे आए हैं, आप आज इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप अपना एसेट एलोकेशन इस तरीके की अपॉर्चुनिटी पे ज़रूर स्टार्ट करें। पहला 100 को अपनी एज से माइनस कर दीजिए। 100 था, 30 साल के आप हैं, आपने माइनस किया, आपके पास 70 की वैल्यू आती है। इसका मतलब है आप जितना पैसा सेव कर रहे हैं उसको आप एसेट एलोकेशन पे रखिए, यानी कि अपनी जो भी आपकी इनकम है उसका 70% हिस्सा आपको मार्केट पे पैसा डालना चाहिए इक्विटी में। क्योंकि आप हिस्टोरिकल देखिए, आप बिल्कुल आप सही हैं, मार्केट गिर रही है, मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है, मार्केट एक करेक्टिव मोड पर आ जाती है, लेकिन किसी भी 3 साल पुराने आदमी से अगर आप पूछेंगे या 5 साल पुराने आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा मार्केट ने कुछ ना कुछ आपको दिया है। ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से कभी एक सेक्टर नहीं चलता, कभी दूसरा सेक्टर नहीं चलता, लेकिन आप अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर होती हैं। जब कोई नया आदमी होता है तो उसको ना इस तरीके का बूस्ट होना मिलता है कि अब बजट आ रहा है तो देयर इज़ अ सम, हम जो इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे थे आपके पास मौका है। जैसे हमने 5 सेक्टर की बात करी, बैंकिंग काउंटर से बात करी, ईवी की बात करी, अदर सेक्टर्स की बात करी, तो मुझे लगता है कि आपको अपना पहला कदम इस बजट के को देखते हुए भी आपको निवेश की बनानी चाहिए और उस तरफ आपको फोकस जरूर करना चाहिए। Point taken. And what would be your advice, or what do you see on the social allocation front? देखिए, वैसे तो सरकार का जो पूरा बजट एलोकेशन होता है उस पर कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट बहुत चीज़ों को फोकस रखती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जेनरिक दवाएं जो गवर्नमेंट ने जब लेकर आए थे तो उसका बेनिफिट यही था कि एक आम आदमी को भी यहाँ पर बेनिफिट मिले, और सरकार ने उसके लिए सब्सिडी भी यहाँ पर एलोकेट करी है। किसान भाई बहनों के लिए बहुत सी सब्सिडीज़ का अनाउंसमेंट आपने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के या फिर जो इंश्योरेंस सेक्टर से आयुष्मान योजना है उसको यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा और साइज़ उसका इंक्रीज़ करना चाहिए। मे बी चाहे वो 5% या 10% भी हो, वो भी बहुत मैटर करता है क्योंकि एक एक आदमी उस पर कवर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत से वेलफेयर फंड की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं से ओल्ड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एलोकेशन यहाँ पर एक मस्ट है। तो मुझे लगता है इन कॉजेज़ पर गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। That's great. That's great. So I think we tried to touch upon many parts in this discussion, and it was engaging. It was, I must say, we touch upon taxation sectors, first-time investors. We even touch upon social causes. I hope that the budget brings positivity to the markets. We all need this at this point in time. The actions of the government in previous budget was pro-consumption. We hope it accelerates more this time. The much needed infusion of energy to the markets, to the middle class pockets. Yeah, I think there is a single line, keep investing. Yeah. Thank you, Dr. Ravi, for this informative session. Thank you, Sachin ji, for having me. और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. So thank you very much. Friends, thanks for watching the video. This is T Experts. We would be happy to answer your queries. See you on Budget Day. Thank you.